नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों के दिन भर की कार्यवाही पर हमारा विशेष बुलेटिन सदन दिन भर। सबसे पहले एक नजर संसद में आज हुए कामकाज की सुर्खियों पर। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा विधेयक, सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 लोकसभा से पारित। बिल में सहायक प्रजनन तकनीक और आईवीएफ को लेकर दिशा निर्देश और व्यवस्था के मानकीकरण का प्रावधान। फर्टिलिटी क्लिनिक्स का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। महिलाओं और बच्चों के शोषण पर लगेगी रोक। राज्यसभा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पेश किया बांध सुरक्षा विधेयक 2019। बांधों के परिचालन और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव। बारह सदस्यों के निलंबन पर राज्यसभा में गतिरोध कायम। उच्च सदन में अवरोध की भेंट चढ़ा शून्यकाल और प्रश्नकाल। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा माफी मांगे निलंबित सदस्य। विपक्ष का माफी मांगने से इनकार। और लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल में उठे जनहित से जुड़े मसले। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 72% हो चुका है रेलवे में विद्युतीकरण का काम। और सदन दिन भर में पहले लोकसभा में आज हुई कार्यवाही से जुड़ी खबरें। लोकसभा ने आज सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल चर्चा के बाद पारित कर दिया। इस विधेयक का मकसद आईवीएफ, सरोगेसी और एआरटी जैसी तकनीक को नियमित करना और इनके क्लिनिक्स को रेगुलेट करना है। इस बिल को पेश करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया था और बिल में समिति के सुझाव पर विचार किया गया है। Reproductive technologies. Honorable, So it is government, sir, I which is rise to actually move that the sensitivity in assisted the reproductive technology regulation bill 2020 to be taken into the consideration. एग रिट्राइवल की प्रोसेस भी उसमें होती है और आईवीएफ और इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन की सारी प्रोसेस होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है और ये एम्ब्रियो रखने के लिए बैंकिंग की व्यवस्था होती है। तो ये सारी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए ये बिल मैं सम्मानीय सदन में ला रहा हूँ। सदन उसके ऊपर विचार करे और उसको पारित करे। This law says that you can send the embryo to determine any pre-existing deficiencies. See, this is very problematic because you are not defining what these pre-existing heritable life-threatening genetic diseases are. This almost borders on eugenics, where you want to do selection, where you want to decide what kind of children can be born and what kind of children cannot be born. So the minister must definitely address this issue and address why these specific diseases which they want to prevent is not defined and left a very gaping hole there. Sir, another thing, sir, the surrogacy bill was passed in this house without debate, but the surrogacy bill is still pending in the Rajya Sabha. So it has not yet become law. But this bill says there is going to be an oversight board which draws its power from the Surrogacy Act. So why are they bringing this bill when that bill has not become law? There are many conflicts between these two laws. Why do you need to have two bills? Why could both not be combined? The surrogacy bill says you must keep records for 25 years. This bill says you keep records only for 10 years. Again, the oversight board is only through the surrogacy bill. Here, the surrogacy bill has not become an act as yet. So how are you going to establish the board where you're drawing the powers from that act which is not there? So there is a lot of conflict. The minister must definitely address why was the haste in bringing this bill when that bill has not been passed, and why is the need to have two separate bills instead of having one combined bill which they deal with the subject, pretty much the same subject. The bill was drafted with an objective number 1, regularizing the registration of the ART clinics and the ART banks, regularizing the age and other criteria for couples who are looking to avail for the benefits of ART, specifying the number of embryos to be planted to the uterus of women, disallowing sex selection at every stage
of the assisted reproductive technology process and ensuring penal provisions for unethical practices in the ART clinics. It is not taught in gynecology. Sometimes a laboratory, an IVF laboratory is mixed up with a pathological laboratory. It has nothing in common. A pathologist knows nothing about IVF, has never handled the gametes. An ovum is 100 times smaller than the strand of hair. It can only be seen under microscope. A sperm is much smaller than that. When IVF takes place, in vitro fertilization, these two are mixed in petri dishes. Though it is called test tube baby these days, most people don't use test tubes, they use petri dishes under media and they put it in the incubator for the baby to happen on their own. There is an advancement to this which is known as intracytoplasmic sperm injection, in which the male factor, that is the sperm, is so slow or so less in number that hair-thin pipettes are used in an equipment called the micromanipulator, by which the tail is crushed, the sperm is taken and pushed into, injected into the ovum to make the baby. That is intracytoplasmic sperm injection, a much superior way of ART, much ahead in vitro fertilization. India's fertility industry is an integral part of the country's growing medical tourism industry, which experienced a 30% growth in 2000 and 15% growth between 2005 and 2010. Despite so much activity in India, there is no standardization protocols yet, and reporting is still very inadequate. Furthermore, there are only guidelines of ART and no law still exists. There has been debate on the medical, ethical and legal aspects of the ART. That's why all this bill regularization came. So to mention a few points, the bill provides that every ART clinic and bank must be registered under the National Registry of Banks and Clinics of India. The National Registry will be established under the bill and will act as a central database with the details of all ART clinics and banks in the country. महोदय, पूरे विश्व में लाखों की तादाद में पुरुष एवं महिलाएं संतान के अभाव में तनाव में जीते हैं। अपने देश में रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का लंबा इतिहास है। वर्ष 1978 के 25 जुलाई को विश्व में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा कराया। अपने देश भारत में भी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा और परिणामस्वरूप 1978 में ही 3 महीने के बाद 3 अक्टूबर को दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में जन्म लिया और मेडिकल क्षेत्र में डिबेट का विषय बन गया तथा सोशल एंड लीगल इम्प्लीकेशन पर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मेडिकल क्षेत्र में इसका प्रभाव ऐसा बढ़ा कि अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2026 तक 4500 करोड़ रुपए का मार्केट इस टेक्नोलॉजी के विस्तार से होगा। ART बिल वह नहीं करता जो लेबल पर कहता है। यह अंडादाता की रक्षा करने के लिए बहुत कम करता है। अंडों की कटाई एक आक्रामक प्रक्रिया है जिसे गलत तरीके से करने पर मृत्यु हो सकती है। विधेयक में अंडादाता की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान उसकी परामर्श या उसकी सहमति वापस लेने की क्षमता प्रदान नहीं करता है। उसे वेतन, समय और प्रयास के नुकसान के लिए कोई मुआवजा या खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं मिलती है। शारीरिक सेवा के लिए भुगतान करने में विफल और मुक्त श्रम का गठन होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा निर्दिष्ट है। विधेयक में पूर्व प्रत्यारोपण अनुवांशिक परीक्षण की आवश्यकता होती है, जहां भ्रूण पहले से मौजूद अनुवांशिक जीवन के लिए खतरा या अनुवंशिक रोगों से पीड़ित होता है। इसे कमीशनिंग पार्टियों की अनुमति के साथ अनुसंधान के लिए दान किया जाता है। इन विकारों विशिष्टीकरण की आवश्यकता है या यूजेनिक्स के एक अनुमेय कार्यक्रम को बढ़ावा देने वाला बिल जोखिम है। विधेयक के पूर्व संस्करणों ने भ्रूण का उपयोग करके अनुसंधान को विनियमित किया गया, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। We have to make sure that the doctors in this country feel very secure and safe and reassured, because we can't threaten doctors.
So this is a very good project that you all are doing, but I feel technically I'm not sure if India is really ready and sound, and I'd urge the Honorable Minister in his reply to see how we as states can work better with you to improve the situation of all the women and the lives of becoming a mother. Just one last line I would like to read. The lady Geeta Aramvetam, an award-winning journalist, said about a book that she said about baby makers, the story of India's surrogacy. I think to quote her, she said, "The Constitution gives a woman a right to reproduce or not to reproduce as she wishes. And she has the right to privacy when she makes her reproductive choices." So this has to be incorporated in the bill. If I have the right to reproduce, I mean I can hire a surrogate, I can go in for IVF, whether I'm a transgender, a lesbian or a divorcee, I have this right as I wish. This is a woman who has lent her womb, has all these rights. So I request you to be considering, this is not a gender issue, this is a social issue, and I think sometimes some things have to be dealt with the heart. We are talking about surrogacy, we are talking about giving birth to a child, उसको दुनिया में लाना चाहते हैं, लेकिन at the same time मैडम, जैसे हमने abandonment की बात कही है, वैसे ही एक पति या पत्नी, वो कपल, मैरिड कपल हो, या जैसे आप बोले कि 5 साल से शादीशुदा हो, उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो वो बच्चा कर सकते हैं, 25 से 35 साल की उम्र की महिला सरोगेट मदर हो सकती है, लेकिन बच्चे को जब शादी के बाद एक कपल जब एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं मैडम, उस वक्त में बच्चे के बारे में ज्यादा कोई नहीं सोचता, बच्चा वहां पर पेरेंटल एलियनेशन का शिकार होता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट को डील करता है मैडम। हमारा संविधान बहुत तरह से हमको बहुत सारी सुविधाएं देता है, बहुत राइट्स देता है, लेकिन ऐसे डीपली कनेक्टेड जैसे एक वेब की तरह होता है मैडम, एक चीज दूसरे से कनेक्टेड होता है, दूसरा तीसरे से होता है, तीसरा चौथे से होता है, चौथा सातवें से होता होगा। ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। पेरेंटल एलियनेशन को भी नजर रखना चाहिए, इसमें लॉ मिनिस्ट्री की भी भूमिका है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री की भी भूमिका है, बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूंगा मैडम, देयर हैज टू बी अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर चाइल्ड स्पेशली, जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाए, जो स्पेशली फोकस्ड हो बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उत्तम भविष्य के लिए। The cost of this reproductive technology, assisted reproductive technology, unless and until, otherwise it will be a luxury, it will be restricted to a creamy layer, to some of these 60 million people. But what about the people who cannot afford it? So bill should also take care of the cost, or regulate the cost, or provide for some kind of assistance to, say, BPL families or families who are not blessed with a child, who depend on this technology but cannot afford it because they don't have sufficient resources. जो ART हो रहा है, ऐसे क्लिनिक बहुत है, लेकिन उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमें पता नहीं है कौन कर रहा है, और उसका ऐसी ART के लिए जो बैंक है एम्ब्रियो के लिए, उसका भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और ART सर्विस किसको लेना है, किसको नहीं लेना चाहिए, उसके लिए एज भी कोई ना कोई फिक्स होनी चाहिए, ये भी नहीं है। और जो डोनर है उसको जब ओवम लेना है उस वक्त उसको जो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, हार्मोन्स ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, इसलिए कभी महिला का हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट हो जाती है, और जैसा मैंने बताया ऐसे कोई महिला का मृत्यु भी हो जाता है, उसका इंश्योरेंस हो, ये भी बहुत आवश्यक होता है, इसलिए उसका इंश्योरेंस हो, इसलिए भी हमने उसमें व्यवस्था की है। प्रश्न ये कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी लोकसभा में MSP को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों का विरोध जारी रहा। विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से नहीं चल पाया। प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान लगातार विपक्षी सांसद अपनी मांग को लेकर नारे लगाते रहे। लोकसभा अध्यक्ष के बार-बार अपील के बाद भी सदन व्यवस्थित नहीं हो पाया। इस वजह से लोकसभा की कार्यवाही को 3 बार स्थगित करना पड़ा।
किसानों के मुद्दों को लेकर टीआरएस के सदस्यों के लगातार विरोध के बीच लोकसभा की कार्रवाई बुधवार दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान सदन के वेल में किसानों के मुद्दों पर नारेबाजी की और तख्तियां दिखाईं। स्पीकर ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से कहा कि ऐसा करना सही नहीं है और उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, आप सदन के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य मान्य बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं। क्या सदन में मर्यादा बनाना चाहते हैं आप? आपके इश्यू पे मैंने आपके कल नेता को बोलने का पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है। यह सदन में आपका तरीका न्यायोचित नहीं है। इस तरीके से सदन नहीं चलने वाला कि कुछ सदस्य, मान्य सदस्य पूरे सदन का व्यवधान करें। सदन गरिमा से चलता है, शालीनता से चलता है। आपको मैंने पूरा विषय उठाने का कल समय दिया था, आप नारेबाजी करने आए, तख्तियां लेके आए यहां पर। यह गलत तरीका है आपका, गलत तरीका है। मैं सभी सदन से आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे गलत तरीके परंपराओं परिपाटियों को हमें रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। इनकी बात मैंने कल विषय रख दी है और ये गलत तरीके से करते हैं। माननीय नेता, आप समझाइए इनको। सदन देश की 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष महोदय, जनरल माननीय सदस्य बुला लीजिए। जनता की भावना अभिव्यक्ति को वहां रखना चाहते हैं। ठीक है आपका। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण काल होता है, सरकार हर बात का जवाब देने को तैयार है। आप बाहर चर्चा करते हैं, यहाँ जवाब देते हैं, जवाब नहीं सुनना चाहते। ये तरीका ठीक नहीं है। नो, सदन की कार्रवाई आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ने मंगोलिया से आए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का सदन से परिचय कराया और उनका स्वागत किया। मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से, सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए सम्मानित अतिथि मंगोलिया की स्टेट ग्रेट हुरल संसद के अध्यक्ष महामहिम श्री गोम्बोजो जंगल शहर और वहाँ के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारत आगमन मंगलवार 30 नवंबर 2021 को हुआ। दिल्ली के अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पहले बोध गया और उसके बाद आगरा भी जाएंगे। उनका सोमवार दिनांक 6 दिसंबर 2021 को भारत से प्रस्थान होगा। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में आपका प्रवास अत्यंत सुखद, आरामदायक एवं फलदायी रहे। उनके माध्यम से हम मंगोलिया की संसद, स्टेट हेड हुरल और वहाँ की सरकार और मंगोलिया की मित्रवत जनता की को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना करते हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लगभग आधे घंटे तक चले प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रश्न और उनके पूरक लिए गए। क्या कोंकण रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कितने कार्यकाल में आप पूरा करेंगे ताकि इंडियन रेलवे के भी जो ट्रेनें चलते हैं या कोंकण रेलवे की ट्रेनें चलते हैं वो चलने में आसानी हो सकती है? इसमें कोंकण रेलवे से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट्स की अभी क्या पोजीशन है, आगे क्या सैंक्शन होने वाला, उसकी मैं सूची आपको अवगत कराता हूँ। As Indian Railways wanted to go for complete electrification by 2022. I don't know whether the target will be fulfilled or not. In 2014, and as per the government decision, Indian Railways will buy 1,000 diesel locomotives from it over 10 years. As on 1st November 2021, out of the 64,689 route kilometers of broad gauge, 46,776 route kilometers have already been electrified, Honorable Speaker Sir, which is 72% of the entire target which we have kept for completing within 2022.
10,000 containers are imported from China to India every year. My suggestion is, why can't the existing very old workshop that has got the capability is not allowed in tender processing itself, even while they are going for putting the bids during the tender, the department, especially the accounts department, it is very surprising. Any Indian manufacturer is open to participation. So if the workshop you are saying is participating, definitely it can participate in the tenders. And the point that honorable member has said, we are definitely now encouraging as far as possible Indian container manufacturing. सदन शुरू होते ही शून्यकाल लिया गया। इसमें सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को सदन के पटल पर रखा। इतने वर्षों में, आजादी के इतने वर्षों के बाद, 75 साल बाद भी हम कॉमन सिविल कोड, ये माननीय जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं कर पाए हैं और इसके लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी कानून लाकर यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की हालात संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं। हमने एक नोटिस दी हुई है 193 नियम के तहत शॉर्ट डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन की इजाज़त दी जाए। और एक कॉलिंग अटेंशन मोशन दी हुई है हैदरपोरा, रामबाग, लावाईपोरा के जो शूट आउट्स हुए हैं उनकी तहकीकात के लिए हमने नोटिस दी हुई है, कॉलिंग अटेंशन नोटिस। सर, उस पर गौर किया जाए। स्टेट्स में जो भी हिस्सेदारी हमारी केंद्र से आनी है, वो हिस्सेदारी हमारे केंद्र से हमारे राज्य में हमारे जितने भी लाभार्थी हैं उनको मिल रही है। पर 3 वर्षों से पिछले लोगों ने अपने स्लैब तोड़ दिए। स्लैब लगाने के उसमें वो 3 साल से भाड़े के घरों में रह रहे हैं। उनको उनका दूसरा जो इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट जो राज्य से मिलना है वो अभी तक उनको मिला नहीं है। और आटा के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में आटा मिलता है परमानेंट रेजिडेंस का, उसके लिए उन लोगों को, लाभार्थियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ में जितने भी पीआर कार्ड शहरी विभाग में मिलने चाहिए वो भी उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। विरोध जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध फिर से शुरू कर दिया। और सदन दिन भर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे राज्यसभा में आज हुई कार्यवाही की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात राज्यसभा में आज की कार्यवाही की। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी राज्यसभा में निलंबित 12 सांसदों को लेकर पक्ष और विपक्ष में गतिरोध जारी रहा, जिस कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। दिन की शुरुआत में राज्यसभा में केरल के नवनिर्वाचित सदस्य जूस के मणि को सदस्यता की शपथ दिलाई गई। राज्यसभा में आज बांध सुरक्षा बिल भी पेश हुआ। लगातार बने गतिरोध के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर में 3 बजे के करीब गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के अवरोध के बीच आज बांध सुरक्षा विधेयक पेश हुआ। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी की वजह से सरकार ने मंगलवार को इसे पेश नहीं किया था। देश के विभिन्न राज्यों में स्थित करीब 5,745 बांधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति निर्धारक समिति, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, और नीतियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए डैम सुरक्षा अथॉरिटी बनाने का प्रावधान। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस विधेयक को पेश करने के साथ ही सभी दलों से अनुरोध किया कि वो विधेयक पर अपने सुझाव दें। हालांकि जल राज्य सूची में आता है, लेकिन केंद्रीय कानून बनाने के लिए 2007 में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किया था। 2019 में यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। दुनिया भर में लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसे लार्ज और मीडियम स्ट्रक्चर्स दुनिया भर में रजिस्टर्ड हैं। माननीय सभापति महोदय, यदि हम इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो दुनिया का सबसे प्राचीन बांध, मानव निर्मित बांध 300 ईसा पूर्व
आप ब्रीफ बोलिए, रिप्लाई के वक्त आप बोलिए। बना था, तब से लेकर के दुनिया भर में अनेक बांध बनाए गए। हमारे देश में भी जो बांध है वो बांध 5000 से ज्यादा जो बांध है वो बांध आज उसमें से 80% बांध 25 साल से पुराने हो गए और गाए बगाए हर 2-3-4 साल में कोई न कोई एक बांध टूटने की घटना विश्व भर में आती है। अभी हाल ही हमारे यहाँ देश में भी आंध्र प्रदेश में बांध टूटने की घटना हुई है जिसमें जानमाल की क्षति हुई है। संसद के उच्च सदन में कार्यवाही की शुरुआत होते ही पहले केरल के नवनिर्वाचित सदस्य जोस के मणि को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। जोस के मणि कांग्रेस एम के सदस्य हैं। मणि इस सप्ताह की शुरुआत में हुए उपचुनाव में केरल से निर्वाचित होकर उच्च सदन तक पहुंचे हैं। जोस के मणि कांग्रेस एम के संस्थापक के एम मणि के बेटे हैं। I, Jose K. Mani, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. राज्यसभा ने आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने की इजाजत देने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमति दे दी। विश्वविद्यालय के कामकाज पर निगाह रखने और आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए 31 सदस्यों वाले कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें अन्य सदस्यों के अलावा लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 1 सदस्य का निर्वाचन होता है। आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची पर उल्लिखितों मेरे कैबिनेट मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम के सामने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए निर्वाचन के प्रस्ताव को मैं सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. संसद का शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों को लेकर गतिरोध जारी रहा। राज्यसभा में दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध के कारण शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में जब सदन दोबारा बैठी तब भी विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहा और प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होने पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये जो हो रहा है वो संसद की गरिमा के खिलाफ है। I cannot allow this. This will not go on record, and I hope that this will be shown to the people what is being done in this house. It is a sacrilege of the house. I have said there is no remorse. There is no remorse of the members who have really insulted parliamentary system, coming to the well of the house, climbing at the table, throwing the papers, snatching papers from the minister, and then also here challenging the chair, doing everything which is unparliamentary, undemocratic, and they have no remorse. What can we do? This is not the way. These placards will not be shown, should not be brought into the house. I advise the members, if you are determined, you don't want to have 0 hour very important issues. 10 important issues are there, special mentions are there. You don't want special mentions, you don't want 0 hour, you don't want house to run. Crores of rupees are being spent on this house and people are getting dismayed for what is happening in this house. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भले ही विपक्ष के विरोध के चलते सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हो, लेकिन जरूरी संसदीय कामकाज सामान्य रूप से हो रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले 3 दिन में न सिर्फ कई मंत्रालयों के कामकाज से जुड़े कागजात सदन के पटल पर रखे गए, बल्कि स्थायी समितियों ने भी कई रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन में पेश की। I rise to present 10 reports in English and Hindi of the department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change. 1. 348th report on action taken by the government on recommendations, observations contained in 316th report on air pollution in Delhi and National Capital Region. 349th report on the action taken by the government on the recommendations, observations contained in 324th report
on status of forests in India. 350th report on the action taken by the government on the recommendations, observations contained in 325th report on an expanded role for the Department of Atomic Energy in cancer treatment in India through an enlarged network of the Tata Memorial Centre. 351st report on the action taken by the government on the recommendation observations contained in 341st report on the demands for grants 202122 of the Department of Atomic Energy. 352nd report on the action taken by the government on the recommendations observations contained in 342nd report on the demands for grant 2021-22 of the Department of Biotechnology. 353rd report on the action taken by the department on the recommendation observations contained in 343rd report on the demands for grant 202122 of the Department of Scientific and Industrial Research. 354th report on the action taken by the department on the recommendation observations contained in 344th report on the demands for grant 2021-22 of the Department of Science and Technology. 355th report on the action taken by the department on the recommendations observations contained in 345th report on the demands for grants 2021-22 of the Department of Space. और इसी के साथ फिलहाल सदन दिन भर में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।